I will take this opportunity to share that our directorate has been able to train 401 unemployed BUMS graduates under CPSC program of National Health Mission, Jammu and Kashmir government. Sir, I am elated to share that among them, 357 graduates are absorbed in government sector as community health officers, and they are serving a large populace across the UT of Jammu and Kashmir. With these words, I invite and request Dean, School of Open Learning, University of Kashmir, Professor Tariq Chasti to have an inaugural address of this event. It's really a privilege for me to be with the students who will be awarded the certificates today on this event. So for the programs, skill development programs, certificate courses, and other programs. So with regard to these skill courses, which are also termed as job-oriented courses, so this is an essential need of an hour for the students to opt for these courses. Since the job opportunities for the academic or formal courses has declined considerably, so these job-oriented courses play an important role in the society, and these students who will opt for these programs, they will no longer be the job seekers, they can sometimes be the job providers also. So it's a trend all over the world that these skill programs, they play an important role in the society. With regard to the Directorate of Lifelong Learning, they are providing a variety of courses, be it in the health sector or the engineering sector, whether it will be the IT sector or the other sectors. So they are providing the courses. Around 38 programs have been identified by them, and they are offering these programs in the phased manner. The Directorate is working on those lines where the students who are not able to get the job in the formal sector, so by providing them the training or a certificate course of 3 months, 6 months, or 1 year diploma program, they are able to get the job opportunities very well. 21st century belongs to those who are having one or the other skill with them. Success, you see, does not come through magic. It needs specific skill to succeed. There is no shortage of jobs world over right now. You can get job all across the globe, anywhere, either in India, anywhere, it may be any part of the world, Gulf countries, European countries, it may be America. But condition is that you must have one or the other skill. We are having huge population right now with us of young people. And we should be privileged enough to have this population at our disposal. But unfortunate is that we are not having the skills. Maximum of our youth are idle, either idle or are working in the unorganized sector where they hardly manage to make both ends meet.
the directorate, taking all the things into perspective into mind, has been unifocal in imparting skills, in orienting skill education towards livelihood. And our courses have been, which we are imparting at different places in the nook and corner of the valley and at the campus as well, are marketable, they are affordable, they are flexible, they are adaptable, and we have tried our level best to bring in the fold of this skill development the poorest of the poor as well, and we have incentivized them. हम लोगों की अपनी जो एक सोच है वो ये है कि जो रोड पे या क्राउड में जो सबसे आखिर बंदा है उसको भी मौका मिले, ओके, काम सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए। और जो यूनिवर्सिटी कर सकती है, जैसे कि अभी हमारे बीर साहब ने बताया आपको, यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे कोर्सेज चलाए, हम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज यूजीसी से और दूसरी जगहों से लाया। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ये भी ज़रूरी है कि हर इंसान को मौका मिले कि वो अपने आप को उभारे, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिले। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सभी को नौकरी इस तरह से नहीं मिल सकती है, वो भी आप सब जानते हैं। इसीलिए कोशिश यही रहती है कि आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि आप खुद भी अपने घर से अपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके कुछ बच्चे बच्चियाँ मिल करके कुछ ऐसा काम करें जिसको हम आपको खुद से अर्न भी कर पाएँ, खुद से जॉब भी क्रिएट कर पाएँ। मैंने देखा एक बच्ची जो थी वो जॉब भी क्रिएट किया है उसने। तो वो सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक आमदनी का सवाल है, ये बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ तो करें। और ख़ास करके कश्मीर का कल्चर, कश्मीर की हिस्ट्री रही है कि यहाँ पे लोग के हुनर बहुत है इनके पास, आप चाहे कालीन बनाने का हो या पेपर मैशी का, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर उसमें ये होता है कि धीरे धीरे करके जो बच्चे अपने पढ़ लिख लेते हैं वो अपने घर के हुनर को छोड़ देते हैं, वो गलत है। आप उसको रहिए, उसको आप इम्प्रूव करिए, ओके। और जिनको मौका नहीं है, एक्चुअली ये जो है ज़्यादा हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि जिनको ज़्यादा मौका नहीं मिला या उनके पास वो बैकग्राउंड नहीं था, उनको हम लोग यहाँ से ट्रेनिंग दें। जहाँ तक हमें ताल्लुक़ है, जो हमारी डिफरेंट क्लाइंट ट्रेनीज़ या हम जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ हम यहाँ करा रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, ये बड़ा पुराना डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसको पुराने ज़माने में हम अडल्ट एजुकेशन के नाम से जाना जाता था। और इसमें नॉर्मली 3 आवर्स होते हैं कि बेसिक लिटरेसी भी इसमें पार्ट होता था और स्किल डेवलपमेंट भी पार्ट होता था। और ये यूनिवर्सिटी का नॉर्मली हम इसको कहते थे कि ये एक फेस ऑफ यूनिवर्सिटी है, कि जो बाहर, क्योंकि यूनिवर्सिटी नॉर्मली हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, तो जो बाहर बाज़ार में होगा या बाहर जो लोगों में होगा या सोसाइटी में होगा, तो वो हमारा 1-2 डिपार्टमेंट वो काम करते थे, मगर उनमें सरफहरस्त DLL या अडल्ट एजुकेशन ही हुआ करता था। कि चाहे एवरी नूक एंड कॉर्नर, करना से लेके गुरेज से लेके यहाँ सारे कश्मीर में ऑलमोस्ट जो भी अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस या सोसाइटीज़ होते थे, उनमें ये स्किल डेवलपमेंट का काम करते थे। अगर मैं ये कहता हूँ कि जो स्किल डेवलपमेंट नॉर्मली हम कहते हैं कि एज ऑन डेट इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जो मेरे साहब कहते हैं यंग पॉपुलेशन 30% है, मगर जहाँ तक हम ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखी जाए, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था, तो जब जर्मनी में आपने सुना होगा कि पढ़ा भी होगा कि जब जर्मनी में जो माइग्रेंट्स आए थे, वहाँ जो लोग बसे थे या रह रहे थे, तो जर्मनी ने एक पॉलिसी लिया कि सबको अपने अपने मुल्क वापस भेजा जाएगा। तो इस पर बड़ा एक डिस्कशन हुआ कि किसको वापस भेजें, यहाँ से किन को वापस भेजें। और फाइनली जब सबको वापस भेजने की बात आई, तो
तो अल्टीमेटली एक कैबिनेट डिसीजन हुआ कि जो हमारे स्किल लेबरर्स हैं, जो बाहर से लोग आए हैं यहाँ सिखाने के लिए आए, जो काम करते हैं, तो कम से कम उनको हम एट लीस्ट यहाँ से नहीं भगा सकते हैं। अगर हम सबको भगाएंगे उनको नहीं भगा सकते हैं। ये एक वैल्यू होता है स्किल लेबरर्स और स्किल मैन पावर का। सिमिलरली अगर आप चाइना की बात करते हैं, जो आज एज ऑन डेट अगर हम मॉडर्न चाइना देखेंगे, मॉडर्न चाइना में देखेंगे जो भी मार्केट में आप चाहे यूएस जाओ, चाहे आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाओ या इंडिया में आओ, तो इंडिया में आप देखोगे कि मैक्सिमम जो गैजेट्स होते हैं या जो खिलौने इन होते हैं, द बेसिक से लेकर टॉप तक, चाहे आप कंप्यूटर देखोगे, चाहे आप आईफोन देखोगे, चाहे आप खिलौना देखोगे बच्चों का, वो ऑलमोस्ट सारा चाइना की मेड होता है। बिकॉज चाइना को स्किल जो है, चाइना में एक पॉलिसी है कि चाइना में बहुत सारे लोगों को बाहर भेजा जाता है ऑन स्कॉलरशिप, चाहे यूएस जाते हैं, चाहे यूरोप जाते हैं, चाहे किसी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, वहाँ स्किल सीखने के लिए। उनके लिए हर कोई चीज़ होता है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि इनको हम स्पॉन्सर करेंगे 2 साल के लिए, वो 2 साल के बाद इनको वापस आना ही आना है। या इंडिया में जो लोग भागते हैं वो तो भागते ही जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं, मगर चाइना की पॉलिसी है कि जो लोग बाहर गए वो वापस ज़रूरी आना है। साइमल्टेनियस जब हम कश्मीर की बात करें, हमारे डीएलएल का डिपार्टमेंट या और कोई डिपार्टमेंट या यहाँ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने भी आईआईटीज़, एनआईटीज़ या इंजीनियरिंग कॉलेजेस या डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज तो कराते हैं, मगर थोड़ा बहुत हमारे जैसे मीर साहब कहते थे कि यहाँ कुछ कश्मीर में हमें इनर भी कुछ इश्यूज़ है। देखो जब स्किल की बात करते हैं तो स्किल में हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारा ग्रो कैसे होती है इकोनॉमी एक कंट्री की, हम कहते हैं कि हमारा कितना पैसा बाहर जाता है और कितना पैसा हमें वापस आता है, कि हमारे बच्चे या हमारी सोसाइटी में जो भी लोग अनएम्प्लॉयड और अनप्रोडक्टिव माउथ्स हैं वो कोई स्किल सीखे। मेरे घर में फॉर एग्जांपल बिजली का कुछ ख़राब होता है, मुझे तो ये नहीं मिलता है इलेक्ट्रिशियन। दिस इज़ द सिचुएशन हियर इन कश्मीर कि हम काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम काम भी करते हैं तो स्किलफुल नहीं होते हैं। तो जैसे मीर साहब ने कहा, मुझे लगता है कि पहले जो हम एक्सपोर्ट के, बिकॉज इंडिया इज़ बिकम ए कैपिटल, एक्सपोर्ट ह्यूमन कैपिटल जो बाहर मुल्कों में जाता है एज ऑन डेट, वो इंडिया से काफ़ी जाता है। चाहे गल्फ की बात करें, चाहे इवन यूरोप और यूएस की बात करें। अगर आप यूएस में देखो, आज आप ट्विटर का देखो चीफ इंडिया का है, आज आप फेसबुक का देखो, सबका ऑलमोस्ट इंडियन ही है। तो इसी तरह से बहुत सारे इंजीनियर्स आजकल यूएस में ही जाते हैं। तो एक्सपोर्ट होता है आज, चाहे टॉप पर चाहे बॉटम पर, आज इंडिया का एक्सपोर्ट हो। मुझे लगता है कि जहाँ तक हमें यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर, जैसे मीर साहब ने कहा कि हमारा एक कौशल केंद्र कौशल हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है और उसमें हम डिग्री कोर्सेज एज ऑन डेट ऑफर करते हैं। मीर साहब ने कहा कि जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो हम एज डीएलएल जो डिपार्टमेंट है वहाँ से भी करते हैं, और हमने रूसा जो मंजूर साहब देख रहे हैं वहाँ ऑनरेबल वाइस चांसलर ने ऑलरेडी तकरीबन 10-12 कोर्सेज हमारे अप्रूव किए हैं, जो थ्रू कुछ डीएलएल के थ्रू होते हैं, कुछ एसआरसी के थ्रू होते हैं, किसी और डिपार्टमेंट के थ्रू होते हैं। मेरा कहना है कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पर अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर के गाइडेंस के अंडर जितने हमें कोर्सेज चलाने हैं वो हम चला रहे हैं एज ऑन डेट। बहुत सारे कोर्सेज, तकरीबन 30 स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज एज ऑन डेट चल रहे हैं। स्किल या हुनर की अहमियत अभी मुकर्रिरीन हजरात ने आपके सामने रखी, मीर साहब ने भी तफसीलन इसका जिक्र किया। एक दौर था हिंदुस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, स्किल एजुकेशन को या वोकेशनल एजुकेशन को, इसमें तालीम और तरबियत में एक दूसरा दर्जा दिया जाता था। पहला दर्जा जिसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन को दिया जाता था, जिसमें बेसिक साइंस आते हैं या सोशल साइंसेज आते हैं। वोकेशनल एजुकेशन को दूसरा दर्जा दिया जाता था। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया के हालात बदल गए, हमारे मुल्क के हालात भी बदल गए। गोच जो तालीम की सतह या लिटरेसी रेट है, काफ़ी तरक्की हमने उसमें की है। लेकिन इसके साथ साथ चाहे वो बढ़ती हुई आबादी है या कुछ और मसाइल हो गए, दुनिया का पूरा जो निज़ाम है वो तब्दील होता गया।
اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو بھی تعلیمی ادارے ہیں یا تحقیقی ادارے ہیں ان کو اپنے اس درس و تدریس کے نظام میں ضروری لازمی طور ایک بدلاؤ لانا پڑا. وقتاً فوقتاً اس طرح کی تبدیلیاں لائی گئیں. پچھلے 1-2 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں گوچ اس کو کئی سال لگے تیار کرنے میں، جس کو آپ نیو ایجوکیشنل پالیسی کہتے ہیں، لیکن یہ مرز وجود میں صرف 1 سال پہلے آئی. اس پالیسی کا وجود میں آنا بھی یہ بھی اسی چیز کا ایک اسی بدلتی صورتحال کا ایک نتیجہ ہے کہ حکومت کو ایک نئی ایجوکیشنل پالیسی وجود میں لانی پڑی. اور اس پالیسی میں جیسا کہ ابھی نثار صاحب نے بھی فرمایا کہ ہنر کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے اس ایجوکیشنل پالیسی میں. محترم وائس چانسلر کی سربراہی میں ہمیں ہمیشہ اس بات کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ ایجوکیشنل پالیسی کو اٹ ہیز ٹو بی، یہ برابر جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے ہمیں یونیورسٹی میں اپنے کام کاج کو اس پالیسی کے مطابق رکھنا ہے. نہ صرف ڈائریکٹریٹ آف لائف لانگ لرننگ بلکہ سبھی ڈپارٹمنٹس کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ جو بھی مضامین ہم اپنے ڈپارٹمنٹس میں پڑھا رہے ہیں اس میں آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ کون سا ہنر ہم کس قسم کی تربیت ہم ایک عام بچے کو دے سکتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف دیز اسکلز، ان کی نشاندہی ہمیں یہاں کے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے. اسکل کورسز کو ڈیزائن کرنا ہے، ان کی ترتیب اس طرح دینی ہے کہ ہمارے وسائل کیا ہیں. ٹریننگ ان چیزوں میں نہیں دی جانی چاہیے جن کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. یہاں کا ہارٹیکلچر ہے، یہاں کی قالین بافی ہے، بہرحال ان کو ہمیں سر فہرست رکھنا ہے جب بھی ہم اسکل کے بارے میں کوئی تربیت دینا چاہیں گے.